noun. As I already told you in my last video that we have number of noun and it has two forms, that is a regular plural form and irregular form. Here I have written one form and the second one is irregular form. Irregular form means the number of nouns in a singular ends with O, E, like T, consonant and vowel sounds, and we add with these words S, IES, and ES. First of all, I would like to tell you that regular forms of verb means that this is the base word. Base word is a cat, dog, work, dress, and pot. These are the regular words. These are the base words, and when we write in plural form, we only add S or ES with the base word. For example, we have a cat, and if we add with S, it will change into a plural form. जब हम इन्हें चेंज करेंगे प्लूरल फॉर्म में, only we add S, or when it ends with a vowel sound or with a consonant sound, or you can say vowel sound with O, E, I, etc. It means we add with them only S. It means there is a dog. We'll convert it into dogs to make its plural form. There is a book. If we write in a plural form, it is a book. Next, dress. We will add es with this word. For example, I have already told you that which word ends with double s. जब किसी भी नाउन वर्ड के साथ डबल एस आएगा तो हम वहाँ पे ई एस जो है वो ऐड करेंगे टू मेक इट प्लूरल फॉर्म. नेक्स्ट, pot ends with a consonant letter. That's why we will write here s to make it plural form. Here's the word desk, and desk ends with the letter K, and if there is a consonant letter, we only add s to make it plural form. Then we have table, tables, mango, mangoes. Because why we add es these words? Because I have already told you any noun word that ends with o, we write es to make it in a plural form. Like here is a peach, and this word also ends with a blending sound ch. It means we'll add es to make a plural form of peach, peach in singular and peaches in plural form. Here's a glass. Glass ends with double S hissing sound, and when we have a hissing sound, it means we'll add es. Here is a glass in singular form and glasses in plural form. It means you make sure that that very word is a noun word. थोड़ा सा मैं आपको मजीद इसके बारे में फर्दर जो है वो एलेबोरेट करूंगी. इफ वी हैव अ वर्ब दैट ends with double s, we'll add es to write in a present indefinite tense. सेम केस जो है verbs के साथ भी, जो verbs ch like teach, अगर हमने इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंपल प्रेजेंट टेंस में राइट करना है तो हम इनके साथ भी, इन वर्ड्स के साथ जो वर्ब एक्शन वर्ड्स जो हैं एंड्स विद डबल एस सी एच एक्स वगैरह के साथ, जैसे यहाँ पे हमारे पास फिक्स है तो फिक्स इज अ वर्ब. तो जब हम फिक्स को सिंपल प्रेजेंट में राइट करेंगे देन विल इट and es with it to make it fixes. Same case with the
noun to make it plural form. Wish, which ends with a blending word, letters sh. So that's why we add es with it to make it in plural form. Berry, berry ends with y and it is followed by the letter r. That's why हम इस यहाँ पे ies ऐड करेंगे because यहाँ पे y हमारे पास लेटर से एंड हो रहा है और जब भी किसी y लेटर पे कोई नाउन वर्ड्स और एक्शन वर्ब जो है वर्ड जो है वो एंड करता है देन हम उनको प्लूरल फॉर्म में या सिंगल सब्जेक्ट के साथ उसके साथ जो वर्ब राइट करते हैं उनके साथ हम आईएस ऐड करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी कंट्रीज इट मीन्स इस सिंगुलर फॉर्म इज country because here is y if we cut this word because r is followed by y. जब भी किसी नाउन वर्ड के लास्ट पे y आता है तो हम वहाँ पे आई एस ऐड करते हैं टू मेक इट प्लूरल फॉर्म and here this is a plural form and it is a singular form. It is so childish, but many of the students don't know what what the addition we add with these words to make it in plural form. That's why हम minute से चलेंगे because हमने एक हमारा aim है मेरा objective है कि I'll make you write by your own कि आप खुद राइट करें अपनी जो क्रिएटिव राइटिंग है जो आपकी मेंटल थिंकिंग है उसको खुद जो है वो राइट करें सेल्फ राइटिंग करें. इसलिए मैं अपने ही मोटिव से नहीं जो है वो पीछे नहीं हो रही. मैंने अगर जितनी भी वीडियोस आपके लिए अपलोड की हैं तो डेट इज़ ऑल अबाउट नाउन. बहुत से स्टूडेंट्स मुझे कह रहे थे कि हमें ये वाली वीडियो चाहिए ये वाली वीडियो चाहिए. उसके लिए मैं उनसे कहा कि बस बी पेशेंट वर्क विद मी कैरी ऑन विद मी. तो नेक्स्ट मैं आपको जो है वो सब कुछ गाइड करने वाली हूँ. Okay students, next topic I'm going to discuss that is very opposite to regular form. It is irregular form. irregular form क्या होती है? फॉर्म ऑफ प्लूरल फॉर्म जो है इसमें आपका जो सिंगुलर फॉर्म है वो प्लूरल फॉर्म से बिल्कुल डिफरेंट है. अगर आपको यहाँ पे एक वर्ड नजर आ रहा है मैन, इफ यू सी हियर चाइल्ड, गोस, माउस, टूथ, these all words you can see on the screen in a singular form. जब हम इनको प्लूरल फॉर्म में चेंज करेंगे देन वो फोनेटिकली चेंज हो जाएंगे. उनकी जो है साउंड चेंज हो जाएगी. their spelling will be changed. So keep in mind the plural form of these noun words. Like here we write man, it is a single, one man. And if we have two men, then the pronunciation changes. Okay, it is pronounced as men, not man, mans. Okay, if we write mans, it means it is wrong, absolutely wrong, grammatical wrong. एंड इंग्लिश लैंग्वेज डजंट एक्सेप्ट इट. इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी. मोस्टली स्टूडेंट्स जो है जब उनके सामने हम उर्दू में मर्दों या आदमियों का वर्ड यूज़ करते हैं तो बच्चे वहाँ पे स्टूडेंट्स मोस्टली स्टूडेंट्स ओनली राइट मैन्स. इफ यू राइट वन राइट मैन or mans, you can write with apostrophe as mens to show some possession. Then we write as followed by apostrophe. तब हम apostrophe लिख के mans write करेंगे. It means यहाँ पे हमने किसी की possession show करनी है. That's why हम यहाँ पे man के साथ s लिख रहे हैं. If there is a man, one man, it means if there are two, three, or more than 1 millions of men, then it is called men. One kid is called child, and more than one child are called children. It means यहाँ पे ये इसकी pronunciation change है और यहाँ पे pronunciation definitely change हो गई because they are irregular. बिकॉज इनकी जो चीज़ें हैं बहुत मिलती जुलती हैं फॉर्म वाइज. लाइक अगर हम एक्शन वर्ड्स देखें
एक्शन वर्ड्स हमारे होते हैं, कुछ रेगुलर होते हैं, कुछ इरेगुलर होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे थोड़ा-सा हट जाएगा, बट वहाँ पे आपको थोड़ा-सा ईज़ी हो जाएगा जब हम रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स पढ़ेंगे। रेगुलर वर्ब्स होते हैं जैसे हमने यहाँ पे लिखा लोग, अगर हम इनको सिंपल प्रेजेंट में लिखेंगे, पास्ट में राइट करेंगे, हम पास्ट पार्टिसिपल में राइट करेंगे, इट द बेस वर्ड रिमेन द सेम। लुक्ड लिखा हमने, लुक्स राइट किया एंड लुकिंग राइट किया। प्रेजेंट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल में जो बेस वर्ड है वो सेम रहता है। एंड इन इरेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब में हमारे पास इफ वी हैव द वर्ड broke as an action word, break, sorry, if we have action word break, the second form of verb, past form of verb is broke and the third form is broken. अब यहाँ पे देखें, जैसे यहाँ पे चाइल्ड था तो चिल्ड्रन हो गया, मैन है तो मैन हो गया। इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास ब्रेक है, उसके सेकंड फॉर्म ब्रोक है एंड थर्ड फॉर्म हमारी ब्रोकन है। इट मीन्स इरेगुलर फॉर्म में आपकी ये चीजें चेंज हो गई, ये इरेगुलर है और ये आपके पास रेगुलर है। बिकॉज बहुत मोस्टली स्टूडेंट्स जो मेरे पास आ रहे हैं वो 15 ईयर्स से ऊपर के हैं, तो इट मीन्स दे आर इंटरेस्टेड इन दीज वीडियोस, सो दैट्स वाई मैं उनके लेवल की जो वीडियो है वो मैंने अपलोड करनी है। इट मीन्स अ गोज एंड when we write in a plural form it means they are gays. Mouse, if we have one rat, in other words it is a mouse and mouse को हम चेंज करेंगे माइस में। टूथ, आपने अक्सर देखा होगा मुख्तलिफ जो पेस्ट होती हैं, डेंटल पाउडर्स होते हैं, उनके ऊपर राइट होता है टूथपेस्ट। टूथब्रश, दांत वाला, दांत को साफ करने वाला ब्रश, तो टीथ ब्रश नहीं लिखा होता, तो टूथ मीन वन टीथ। वन जो है हमारे पास लिप्स के नीचे जो हमारी एक हार्ड फॉर्म में व्हाइट कलर के होते हैं उनको हम टीथ कहते हैं। तो दे व्हेन दे आर इन मोर देन वन फॉर्म इट मीन्स दे आर इन टीथ। फुट, एक पाँव को फुट कहते हैं एंड मोर देन वन को हम फीट बोलेंगे। लाउस, जो जुएं होती हैं, इंसेक्ट्स होते हैं हमारे बालों के अंदर, तो उसको हम कहते हैं और उसके जो प्लूरल फॉर्म है वो लाइस है। हाँ, लाइकवाइज हमारे पास ऐसे ही वी हैव मोर वर्ड्स। ऑक्स, ऑक्स चेंजेस इनटू ऑक्सन। व्हेन वी हैव वन, इट इज अ नेम ऑफ, इट इज अ नेम फॉर एनिमल, एनिमल के लिए है। और जब हम इसको ऑक्स को हम चेंज करेंगे देन इट विल बिकम oxen. This is a woman. Woman is a single. When we talk about more than one, then they will be pronounced as women. It means यहाँ पे देखा आपने ox है, oxes नहीं लिखा, हो सकता था, बट ग्रामेटिकली चेंजेस हैं जो हमारे पास इंग्लिश के हैं, क्योंकि इट इज़ नॉट आवर मदर टंग, इसलिए जो इंग्लिश कहती है हमने उसको जो है वो फॉलो करना है, उन रूल्स को फॉलो करना है एंड देन वी कैन राइट मोर करेक्टली एंड स्पीक फ्लुएंटली। वुमेन है तो इसको हम वेमेन पढ़ेंगे, नॉट वुमन। ये वर्ड वेमेन पढ़ा जाएगा, ये मोस्ट बच्चे वो मेन पढ़ते हैं, वो मेन पढ़ेंगे तो वेमेन वर्ड होता है ये। नेक्स्ट, देयर आर सम अदर इरेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब। इट इज अ सिंगुलर फॉर्म, it is a singular form. Any word that ends with f and fe, ऐसे नाउन वर्ड्स जो एफ और एफ ई पे फिनिश करते हैं, एंड करते हैं, उनके साथ हम वी ई एस राइट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हियर वी हैव कॉफ, तो देन वी राइट हियर इनटू calves, वी राइट इनटू calves और पढ़ेंगे इनको calves, calves नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज जब भी ए के बाद आपका एल साउंड आता है तो उसकी जो है एल साउंड होता है वो साइलेंट हो जाता है, इसलिए हमको इनको कॉल्स पढ़ेंगे। ये हमारे पास वर्ड वोल्फ है, इनको हम पढ़ेंगे वॉल्व्स। थीफ है, देन इट इज चेंज इनटू थीव्स। लोफ है, लोफ ब्रेड के एक पीस को कहते हैं, तो देन हमारे पास है लोव्स। हाफ,
आधे हिस्से को कहते हैं, अगर ज्यादा चीजों के आधे हिस्से हैं उनको हम हाफ्स में चेंज करेंगे। सेल्फ है, आपने अक्सर देखा होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हम लिखते हैं सेल्फ। इट के साथ, शी के साथ जो हमारे पास हर आता है उसके साथ हम सेल्फ लेते हैं, बिकॉज सिंगुलर के साथ हमने सेल्फ राइट करना है। और जहां पे बात आएगी ज्यादा की, लाइक जैसे हमारे पास है देम, उसके साथ जब हम सेल्फ लिखेंगे तो हम लिखेंगे सेल्व्स, बिकॉज देम में मोर देन वन पर्सन है, दैट्स वाई वो हमने वहां पे सेल्व्स राइट किया। और यहाँ पे योर है, यू है, तो यू के साथ आप लिखेंगे योर सेल्फ। और अगर उस जो आप जिससे आप बात कर रहे हैं वो मोर देन वन है, ओके, तो उनके साथ फिर हम योर सेल्व्स राइट करेंगे, लाइकवाइज जैसे हमने देम के साथ किया। इसी तरह आपके पास स्कार्फ है, then we change into scarves. This word is scarves. ज्यादा स्कार्फ है आपके पास तो आप उनको स्कार्व्स बोलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं। सम नाउन वर्ड्स डोंट हैव द प्लूरल फॉर्म। अगर हम ये वर्ड्स प्लूरल फॉर्म में भी होंगे तो ये सेम रहेंगे, इनके साथ हम एस राइट नहीं कर सकते। ओके, हम यहाँ पे स्कूल ऑफ फिश राइट करेंगे। अगर हमने इनको प्लूरल फॉर्म में राइट करना है तो हम स्कूल ऑफ फिश राइट करते हैं। शीप है तो हम हर्ड ऑफ शीप करेंगे। ओके, इनको हम प्लूरल फॉर्म में राइट नहीं कर सकते बिकॉज दे आर ऑल ऑलरेडी इन प्लूरल फॉर्म। फिश है तो उसके प्लूरल फॉर्म भी फिश है। अगर आपने यहाँ पे प्लूरल फॉर्म राइट करनी है तो फिर हमने स्कूल ऑफ फिश राइट करेंगे। अगर हमारे पास शीप है तो ये शीप रहेगा इन प्लूरल फॉर्म, बट अगर हमने इनको प्लूरल फॉर्म में लिखना है तो फिर हम यहाँ पे हर्ड ऑफ शीप राइट करेंगे कि ये एक भेड़ों का रेवड़ है। कैटल है तो कैटल इज ऑलवेज कैटल, ठीक है। और अगर हम वैसे राइट करेंगे, हम बफलोज राइट करेंगे, हम काउज राइट करेंगे, बट दे आर डिफरेंट एनिमल्स, तो कलेक्टिवली हम उनको कैटल का नाम देंगे। डियर इज ऑलवेज डियर, एक भी डियर होता है, ज्यादा भी डियर होगा, ठीक है। पैक ऑफ डियर हो सकता है। स्पेशीज है, दे आर ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म, प्लूरल में भी यही कहेगा और उसको हम सिंगुलर में भी यही कहेंगे, तो स्पेशीज स्पेशीज ही है। एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट है क्योंकि जितनी भी एक से रिलेटेड चीजें हैं उनको एलैबोरेट करने के लिए हम एयरक्राफ्ट का वर्ड यूज करते हैं। फिजिक्स, यहाँ पे आपको फिजिक्स में के एंड पे जो है वो एस जो है वो दिख रहा है और यू कैन इट इज विजिबल टू यू, तो ये आपके पास एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। ओके, आपने ये देखा होगा कि इसके साथ एस है बट इट डजंट हैव एनी प्लूरल फॉर्म, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं है। ये फिजिक्स की जनरली एक बुक है, और जैसे मैथमेटिक्स होता है, फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, तो ये बुक्स के नेम हैं। इनकी कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होती, तो फिजिक्स इज ऑलवेज फिजिक्स। अगर आपके पास किताबें हैं, डिफरेंट बुक्स हैं, तो बुक्स ऑफ फिजिक्स आ जाएगा, टेस्ट ऑफ फिजिक्स आ जाएगा। अगर फिजिक्स टेस्ट है, चाहे वो ज्यादा है कम है, तो आपके पास फिजिक्स ही रहेगा। लीफ ends with F and will add VES, lives. Life, lives. Wife, wives. Knife, and it will into knives. Okay, this is also a kind of irregular verb. ओके स्टूडेंट, इरेगुलर फॉर्म है ये, बट इन चीज़ों को आपने, इन वर्ड्स को आपने मेमोराइज कर लें, बिकॉज दे आर नॉट इजी एज यू यू कैन से, एज यू आर ऑब्जर्विंग दिस वर्ड्स, कि हम एस लगाएंगे तो वो प्लूरल फॉर्म बन जाएगा, हम एस लगाएंगे तो प्लूरल फॉर्म बन जाएगा। इन तमाम वर्ड्स को आपने, इसकी जो ब्लेंडिंग है उसको आपने मेमोराइज करना है। Here are some words
that ends with US. आज जो वर्ड है उस पे फिनिश करेंगे, एंड करेंगे, उनके साथ हमने आई राइट करना है. इट मीन्स विल रिमूव यूएस एंड दिस वर्ड चेंज इज एलमनस, और एलमनस को हम चेंज करेंगे एलमनाई. ओके, रेडियस को हम चेंज करेंगे रेडियाई में. दिस इज रेडियाई. फंगस को फंजाई, फंजाई में. कैक्टस को कैक्टाई. नेक्स्ट न्यूक्लियस को न्यूक्लियाई में.